اور حالات کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ دیا. ہم عدالت عظمیٰ کے بہت شکر گزار ہیں اور آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا. اور اس بیٹل میں یہ جو لیگل بیٹل جو لڑی گئی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ اپوزیشن کے تمام پارٹیز کے ہیڈز، ان کے کولیگز، ان کے ساتھیوں نے اور وہ اتحادی جنہوں نے حق سچ کی بات کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ عامل ہے، وہ انڈیپینڈنس جو پارلیمان میں بطور انڈیپینڈنٹ کے بیٹھے تھے، انہوں نے حق گوئی کے لیے ہمارا ساتھ دیا. اور وہ ریبلز جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ انہوں نے سچ کو سچ کہا اور غلط کو غلط کہا، ہم ان سب کا اپنا فرداً اور اجتماعاً شکریہ ادا کرتے ہیں. اب انشاءاللہ اگلا مرحلہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق اب ووٹ آف نو کانفیڈنس اب دوبارہ فیلڈ میں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اپنی اجتماعی قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مرحلہ کامیابی سے طے کریں گے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا، اس کا بھی عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں شارٹ آرڈر میں لکھ دیا ہے، وہ لیڈر آف دی ہاؤس کے چناؤ کا. وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اس کو طے کریں گے اور پھر ہم سب مل کے مشاورت کے ساتھ اس ملک کی جتنی بھی حد المقدور خدمت کر سکتے ہیں غربت، بے روزگاری، ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے، چاہے وہ صوبہ سندھ ہے، چاہے وہ صوبہ بلوچستان ہے، چاہے وہ صوبہ KPK ہے یا پنجاب ہے، اور وہ ملینز غریب عوام جن کو دوائی نہیں ملتی، جن کو ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہمارے کاندھوں پہ یہ بوجھ آن پڑا ہے اور انشاءاللہ ہم مل کر جس طرح یہ مراحل ہم نے طے کیے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم کامیابی سے طے کریں گے. ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لفظ وکٹمائزیشن نہیں ہے، یعنی جو انتقام کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے. قانون انصاف اپنا راستہ اپنائے گا اور یہ نہ غیب کا علم ہمیں ہے نہ نیب کا علم ہمیں ہے. البتہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کو ہم توڑ کے رہیں گے انشاءاللہ، جس نے پاکستان کو بے پناہ نقصان پہنچایا. دوسری جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر PTI والے استعفیٰ دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس ایوان کے جو سنہری روایات ہیں اس کے مطابق چلانے کے لیے حد المقدور کوشش کریں گے اینڈ پوری کوشش کریں گے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں. سوال آ جائے گا ان سے سوال کریں. میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کی وزارت وزیر اعظم بننے میں کوئی رکاوٹ باقی ہے، اور اگر جب یہ آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کو دعوت دیں گے بطور اپوزیشن لیڈر کے جو اصلاحات کرنی ہے ان کو ساتھ لے کے چلا جائے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں ان تمام اکابرین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو نامزد کیا. میں اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اپنی پارٹی کا. تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ مرحلہ طے ہو جائے گا. رہی بات کہ کوئی رکاوٹ ہے تو جادو ٹونا تو حرام ہے بالکل، اور وہ ہر حوالے سے حرام ہے. تو اس لیے ویسے بھی اگر کوئی جعلی جادو ٹونا تھا وہ یہاں سے پاکستان چھوڑ کے ویسے بھاگ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی قدرت کا نظام ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم ریفارمز کے لیے پارلیمان میں تمام پارٹیوں سے رجوع کریں گے تاکہ ملک کو یہ احساس ہو کہ اس میں سب کی جو آواز شامل ہے. بلاول صاحب سوال کریں، ان سے سوال کریں. بلاول صاحب سوال کریں. میں سمجھتا ہوں آج کی یہ شب شکر کا تقاضا رکھتی ہے، اور شکر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور ہماری قوم پر اپنی نظام انصاف اور عدالتوں پر ہمارا اعتماد اور یقین بڑھایا ہے. یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے ایوان کو، اس پورے نظام کو، معیشت و معاشرت سب کے حق میں یہ فیصلہ گیا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ نئی آنے والی قیادت
ایک ایسا پاکستان دے گی جس میں پاکستان کی تمام لوگوں کو, تمام زبان بولنے والے, تمام علاقوں میں رہنے والوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار سمجھا جائے گا انشاءاللہ. اور بار کونسل کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ صحیح وقت میں سچ کے ساتھ کھڑے رہی, اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ تاریخ کے صحیح وقت میں ہم تاریخ کے صحیح سمت میں کھڑے تھے. ہم ایک منٹ, میں تمام لائرز, تمام پارٹیز کے لائر جو ہیں, پی ایم ایل این کے, پیپلز پارٹی کے, جے یو آئی کے, بی این پی مینگل کے, اے این پی کے, اور درجہ بدرجہ جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں, ان کے لائرز نے جس انتھک محنت سے کام کیا اور شاندار دلائل دیے ہیں, ہم سب ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اس بیٹل کو جیتنے میں بڑا ہاتھ ہے. میں شہباز شریف صاحب متحدہ اپوزیشن کی طرف سے اور پورا پاکستان کو ایک بار پھر مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں. اور جیسے ہمارا قائد حزب اختلاف اور جلد انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جیت ہمارا جیت نہیں ہے, نہ کسی ایک آدمی کا شکست ہے, یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے, یہ پاکستان کی جیت ہے, یہ جمہوریت کی جیت ہے. اور اس جیت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کے بحالی کی طرف بڑھیں گے, ہم میڈیا کی آزادی کو بحال کریں گے, ہم پاکستان کے عوام کو ان کا اپنا معاشی حقوق دلوائیں گے, اور مل کے ایک ایسا الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں گے تاکہ جب ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو وہ صاف شفاف الیکشنز ہو, اور عوام کے منتخب نمائندے جن کے پاس عوام کے مینڈیٹ ہو وہ عوام کے مسائل کا حل نکالیں. بس یہاں سے ہوتا ہے بس بہت ہماری آواز نکلتی ہے. میں سب سے پہلے تو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج جو تاریخی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. اور 3 تاریخ کو بے شک جو ہوا وہ پارلیمنٹ پہ حملہ تھا, وہ جمہوریت پہ حملہ تھا, وہ پاکستان کے آئین پہ حملہ تھا, وہ وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام پہ حملہ تھا. اور آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ, جو تاریخی فیصلہ دیا ہے, اور اس رولنگ کو اور جتنے بھی ان کے اقدامات تھے ان کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا گیا ہے, ان کو رد قرار دیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ جس نیریٹو کی بنیاد پر انہوں نے وہ فیصلہ, وہ رولنگ دی تھی, اس نیریٹو کو بھی ایک طریقے سے سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے. تو میں سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی یہاں پر رکھوں گا ضرور کہ اب اصل مرحلہ, ہمارا اصل امتحان اب اس کے بعد آئے گا, کیونکہ جو ریسپانسبلٹی مسائل جس لیول تک ہمارے پہنچ گئے ہیں, ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ہے, ملٹرائزیشن ہے, یہاں پر پختونخوا اور بلوچستان اور کراچی اور باقی علاقوں میں جو مسنگ پرسنس کے مسائل ہیں, ان سب مسائل کو اب حل کرنا ہوگا, اور ان کے حل کرنے کی ریسپانسبلٹی اب ہمارے اوپر آتی ہے, ہم سب قائدین کے اوپر آتی ہے. تو قوم جو توقعات رکھتی ہے, امید ہے کہ ہم ہماری قیادت, اپوزیشن کی جو قیادت ہے وہ اس پر آنے والے وقت میں پورا اتر گی. بہت شکریہ. جی مولانا اسد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ نے آئین کو اس کا حق واپس دلایا ہے, اور وہ آئین جو پاکستان کے اندر رہنے والے تمام نظریات کے حامل اداروں کی, پارٹیوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے, چاہے وہ قوم پرست ہوں, چاہے وہ مذہبی ہوں, چاہے وہ سیکولر ہوں, لبرل ہوں. ہم اس آئین کی بحالی چاہتے ہیں جو تمام پاکستان میں رہنے والوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے, اور انسانی حقوق کا تحفظ, معاشی حقوق کا تحفظ, جمہوری حقوق کا تحفظ. اس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ تمام نظریات کی حامل یہ تنظیمیں مسلسل جدوجہد کر رہی تھی, اپنی ذات پر تنقید برداشت کی ہے, اپنی پارٹیز پر تنقید برداشت کی ہے, لیکن
उसके साथ आज़्म मुसम्मम लेकर हम मैदान अमल में रहे हैं। आज जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का इजहार किया और बिलावल साहब ने उसका इआदा किया कि ये किसी फ़र्द की, किसी तंजीम की कामयाबी नहीं और किसी की नाकामी नहीं, बल्कि आइन की फ़तह है, पाकिस्तान की फ़तह है, पूरी कौम की फ़तह है। जो लोग ये समझते हैं कि वो हम इस बुनियाद पर कि हमारी किसी तंजीम के साथ लगती नहीं है या हम उनसे नफ़रत करते हैं, आज पूरी कौमी क़यादत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको दावत देते हैं कि आए, हमें मिलकर इस कौम की वहदत को यकीनी बनाना है। पाकिस्तानी कौम मुसलसल कई सालों से मुंतशिर हो रही है, मुंतशिर किया जा रहा है। हमने तमाम कौम को मुंतशिर होने से बचाना है। इस आइन के नीचे उनको एक वहदत करके उस वहदत को पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए इस्तेमाल करना है। मैं यही जज्बात रखता हूँ और अपने तमाम अकाबिरीन से कि जिन्होंने ये जदोजहद की है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह अपोजिशन लीडर ने आज शुरुआत में कहा कि ये किसी की आज हार या जीत का मसला नहीं है, मैं उसी बात को दोहराऊंगा और आज मेरे ख़्याल से इसी बात को बार बार दोहराने की ज़रूरत है, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। बदकिस्मती से चंद नादान दोस्तों के मशवरे से आज से चंद दिन पहले आईन पर और पार्लिमान पर हमला किया गया और पार्लिमान का मसला अदालत में चला गया। अदालत ने आज एक तारीख़ी फ़ैसले के ज़रिए हमेशा हमेशा के लिए नज़री ज़रूरत को दफन कर दिया और अदालती फ़ैसले से आज जमहूरियत मज़ीद मजबूत हुई है और पाकिस्तान में आईन की हुक्मरानी के लिए राह हमवार हुई है। मेरे ख़्याल से इसके बाद का मरहला शायद नहायत ही अहम है, जहाँ पर हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढना है, पाकिस्तान के मसाइल को हमने हल करना है और उसके लिए सब ने अपने अपनी सियासी नज़रियात से थोड़ा ऊपर उठना होगा, अपने अपने सियासी नज़रियात और वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्क का सोचना होगा, पाकिस्तान का सोचना होगा, अपनी कौम का सोचना होगा। और मैं बेशक इस से मुत्तफिक हूँ कि अब तलखियों की गुंजाइश नहीं है। उस तरफ भी जो लोग हैं, उस तरफ भी जो साथी हैं जिन्होंने बदकिस्मती से हमें शायद मुल्क दुश्मन और गद्दार समझा, लेकिन हम ना उनको मुल्क दुश्मन समझते हैं, ना हम गद्दार समझते हैं, हम उनको भी पाकिस्तानी समझते हैं। और आज यही अपील इनसे होगी कि उन तलखियों को बुलाकर आए, मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तान को एक सख्त मराइल से हमकिनार किया और जैसे मेरे साथियों ने किया कि हमारा इरादा इंतकाम का नहीं है। हम यहाँ पे ये जो इकट्ठे हुए हैं एक ही नज़रिए पे हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करनी है। 22 करोड़ आवाम को जो उन पे मुश्किलात हैं, जो मुसीबतें हैं, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गई है। हमने उससे उनको निकालना है। इस मुल्क को एक ऐसी पहचान देनी है कि ये अवाम खिदमत मुल्क है, वेलफेयर स्टेट है। और मैं अपने PTI के भाइयों को भी अर्ज़ करता हूँ कि तलखियों को दूर करें, मिल के बैठें हमारे साथ। जैसे हमारे अपना कायद ने लीडर ऑफ द हाउस इंशाल्लाह होंगे, आसिफ साहब ने भी कहा कि हमारा इंतकाम का कोई इरादा नहीं है, ना हम इस बुनियाद पे जुड़े हैं। और हमें भी अल्लाह तौफीक दे कि हम इस पे पूरा उतरें, खिदमत करें। और दूसरा, मैं सारे साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ, लॉयर्स का, अपने मेंबर्स का और ख़ास करके मीडिया का, क्योंकि मीडिया ने इस दफ़ा पूरी जमहूरियत दिखाई है और जैसे दिन रात वो जागते रहें और हमें रिपोर्ट देते रहें, मैं उनका भी मशकूर हूँ। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम कायदीन को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और बिलखुसूस
उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स को मुबारकबाद दूंगा जो आज तारीख़ी दिन हमें नसीब हुआ है। मैं समझता हूँ मज़लूम और महकूमों के लिए आज का ये तारीख़ी दिन या तारीख़ी फ़ैसला एक हल्की सी हमें उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है, और यही उम्मीद रखते हैं कि ये किरण जो है आइंदा आने वाले दिनों में एक रोशनी में तब्दील होगी, और ये ना कि सिर्फ़ एक सूबे एक ज़बान बल्कि मुल्क भर में जहाँ मज़लूम और महकूम नाइंसाफ़ी के अंधेरों में जिनको धकेल दिया गया है, जिनके बच्चे आज दिन तक उन काल कोठरियों में अंधेरों में हैं, उनके लिए एक रोशनी की एक नवीद साबित होगी। और इसके साथ साथ मैं मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस दौर में, हालांकि एक महीने का अरसा था जिसमें मीडिया भी 24 आवर्स जो है ना वो अपनी रिपोर्टिंग करता रहता था, और इस तरह पॉलिटिकल पार्टी के जो अकाबरीन भी हैं, लेकिन इसके आगे जो हमारे लिए जो मराइल आएंगे वो बहुत सख्त तरीन होंगे। और आज हमने ये तय कर लिया है कि उन मराइल का भी हम बड़ी खुश असलूबी से जो उसका मुकाबला करेंगे। खुदावंद ताला से यही दुआ करेंगे कि उन मराइल को कामयाबी करने में हमारी मददगार साबित हो। बड़ी मैं आखिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये अदालती फ़ैसले ने पूरे मुल्क में ये साबित किया है कि अदालतें आज़ाद हैं और अदालतों ने तारीख़ रकम की है। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने जो लोगों से वादे किए, जो तब्दीली की बात की, वो महज सिर्फ बातें थीं, बातों के अलावा कुछ नहीं कर सके, और कहा कि हर किसी पे करप्शन के इल्ज़ामात उठाए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सके। और जहाँ तक बलूचिस्तान में सिंध में KPK में जहाँ तक मिसिंग पर्सनस का इशू है, वहाँ इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, उनकी बेशतर लिस्ट मेरे पास आज भी मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मरले से गुजरेंगे, जैसी आज की मौजूदा अपोजिशन वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगी तो मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा, और वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि उनकी जल्द उनके इलाकों में वापसी हो, जिनके प्यारे लापता हैं वो अपने घरों को जा सकें। हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हम शहबाज शरीफ साहब से भी और तमाम लीडर साहिबान से शेयर करेंगे, और इंशाअल्लाह जल्द उम्मीद रखते हैं आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि जल्द वो कौम को इस पे खुशखबरी देंगे। मैं दो बातें कर लूँ जी। एक तो आपका मीडिया का मुकर्रर शुक्रिया कि आपने इस तमाम मराइल में आपने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने हक़ाइक़ पूरी कौम को के सामने लेके आए। जो मराइल थे, जो मुश्किलात थी, जो चैलेंजेस थे, सब आपने अच्छी तरह कवर किए। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। इसके अलावा मैं पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने जनाब एहसन भून साहब ने, उनकी टीम ने पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ के लिए बहुत शानदार तरीके से और बड़ी यकसुई से इसमें हिस्सा लिया, और आवाम की आवाज़ वो उन्होंने पहुँचाई अदालत उज़्मा में। हम उनका बहुत शुक्रगुज़ार हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। अब बलूचिस्तान के जो ज़ुमा यहाँ मौजूद हैं पार्लियामान में, वो मसरूफ़ हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, स्पीकर के और दूसरे तमाम मराइल। तो मेरी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश होगी कि इन इलेक्शन को जो 10 तारीख को होने जा रहे हैं, इनको मेहरबानी करके ज़्यादा नहीं तो 15-20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए मौखर कर दें, ताकि पार्लियामेंट में बलूचिस्तान की पार्टीज़, उनके ज़ुमा अपना जो आइनी किरदार जो है वो कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आप सबसे है कि जैसा कि आपने अपनी बातों में ये फरमाया कि हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, तो 3 अप्रैल को जो कुछ हुआ क्या समझा जाए कि आपने उनको माफ़ कर दिया या उनको जो आइन या कानून के कटहरे में लाया जाए? मैंने तो कहा कि आइन और कानून अपना रास्ता लेगा, उसमें मैं मुदाखलत नहीं करूंगा, ये कोई और मुदाखलत नहीं करेगा। आइन कानून अपना रास्ता लेगा। नवीद अकबर आज न्यूज़ से PM इन मीटिंग से मेरा ये सवाल है कि
कल काबीना का इजलास बुला लिया इमरान साहब ने और दोबारा फिर इस तरह की बातें की जा रही है इमरान न्यारी साहब की टीम की तरफ से कि फिर वो कोई सरप्राइज देंगे, तो अब कोई सरप्राइज की गुंजाइश भी रहेगी उनकी? उनके सारे सरप्राइज जो हैं वो फेक निकले, जाली निकले, और मैं समझता हूँ कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एब्सोल्युटली किसी फ्रॉड की अब गुंजाइश नहीं है। मियां साहब का हम सवाल है ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सदन के इख्तिलाफात को भी करार दिया है। सदन के खिलाफ इम्पीचमेंट के हवाले से आपने कुछ सोचा है कि कब करेंगे? ये मुशावरत करेंगे, अब अपने सब पार्टीज बैठ के, ये अभी उसका मरहला नहीं आया, बाद में करेंगे। शहबाज साहब ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इक़्तिसादी सूरत हाल, डॉलर मुल्क की तारीख की जो बुलंद तरीन सतह पर है, इसी तरह शरह सूद में भी इजाफा कर दिया गया है, तो वो क्या इक़दाम हैं जो आप फौरी लेंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बिजली और पेट्रोल और दीगर जो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं उससे आवाम को शदीद मुश्किल? तो आप पूछे ना उनसे, जो कहा करते थे कि डॉलर 1 रुपया महंगा होगा तो वज़ीर आज़म करप्ट हो गए, जाके पूछे उनसे। आप क्या इक़दाम? हम इंशाल्लाह जब आएंगे तो खाएंगे। सवाल है क्योंकि NSC को लेकर जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने इसको बहुत जो है घसीटने की भी कोशिश की, लेकिन पूरे प्रोसेस में आप असली क़यादत के किरदार को कैसे देखते हैं? आपने आज अदालत उज़्मा का फैसला नहीं देख लिया? उन्होंने वहाँ पर कहा, बड़ा क्लियरली कहा कि ये जो फैसला डिप्टी स्पीकर ने किया ये गैर आइनी है। तो डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला जो गैर आइनी किया उसकी बुनियाद क्या थी? वो ढकोसला, वो झूठ, वो फ्रॉड कि जी इसमें गैर मुल्की जो इंटरफेरेंस हुई है, तो दूध और पानी का पानी हो गया। भाई अब मैं थक गया हूँ, बिलावल साहब से पूछे अब आप। हम दोनों शख्सियात ने कुछ वजाहत तलब की थी, आर्मी चीफ और PGI SI। अब उसकी कोई ज़रूरत है कि नहीं? और दूसरा वो जो खत है उसकी इक़्तिदार में आने के बाद आपने क्या करेंगे? आज अदालत उज़्मा का फैसला जो है वो खुद बोल रहा है, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप वो पढ़ लें फैसला, मज़ीद कोई गुंजाइश होगी तो मुझे आप आके बता दीजिएगा। मियां साहब कल वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब करने जा रहे हैं और एक कौन सी कौम से? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की कौम से तो हम लोग खिताब कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिद्दी कप्तान को कोई सेफ पैसेज देंगे? सेफ पैसेज आपने ईवान में आके शुरू में अपनी पहली स्पीच में कहा था कि मिसाक के मैशत करना चाहते हैं, तो अब आपको वक्त आ गया शायद, तो आप उसको अमली जमा पहनाएंगे और उसके लिए जो आपने कोई प्लानिंग की? बिल्कुल जी, उसके लिए भरपूर हम इंशाल्लाह मेहनत से काम करेंगे, आपको उसके नतीजे नजर आएंगे इंशाल्लाह। अगर ये इस्तीफा दे देते हैं, फर्ज करें PTI के लोग, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? इलेक्शन में जाएंगे या हुकूमत बनाएंगे? क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा? सुठो गाल है ना, सुठो गाल है। ये जो तब्दीली का सफर मरकज में आ चुका है, ये KP के गिलगित और कश्मीर में भी जाएगा। और दूसरा मेरा MQM से सवाल है कि जो वादे आपसे इमरान खान ने किए थे आपकी मिसिंग पर्सन और दफातर खोलने के, आपको उम्मीद है कि ये वादे बिलावल और शहबाज पूरे कर सकेंगे? आज हमने ये सारा बोझ उधर शिफ्ट कर दिया है और लापता अफराद के हवाले से तो पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। अभी मेरी बात हो रही थी, इंशाअल्लाह अदालती कमीशन बनेगा और इसकी भी पूरी जद्दोजहद जो तब्दीली बाकी सूबों में भी आएगी, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में PTI की गवर्नमेंट है, KP के, मैं उस पर आप रखिए। वो देखिए, ये जमहूरियत है और जमहूरियत में सबको अपने दायरे में रह के काम करने का हक है। वहाँ के अवाम, वहाँ के वोटर्स, वहाँ के पार्लियामान, उनको फैसला करने का हक है। ये सब एक बुके तो आपने बना दिया है, तमाम भूल आपके इसमें समा गए हैं, तो भी आपकी कौमी हुकूमत बनाने के हवाले से क्या मंसूबा बना? कौमी हुकूमत इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस तरह ये मराहल तय हुए हैं बड़े अच्छे तरीके से, इसी ऐसे तरीके से कौमी हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।